Hello everyone. Today we are going to start flow through pipes if the pipes are connected in different ways. Okay. Last time we discussed about the various losses which occurs in pipe. Okay, various head losses, which are mainly broadly classified into two categories, which is major losses and minor losses. Okay. If the pipe is long, okay, if the pipe is very long, then we consider only major losses. If the pipe is short, then we consider minor losses as well. Okay. I will repeat that two classifications for you. First of all is major losses. Major losses are mainly due to friction. Okay, major losses are mainly due to friction, but the minor losses are due to sudden expansion of pipe. Okay, and second case is sudden contraction of pipe. Okay, if the bigger size of pipe is coming from behind, and then it is connected to a shorter diameter pipe. Okay, and other cases like at the exit of the pipe there are some losses, at the entrance of the pipe there are some losses, due to pipe fittings there are losses. Okay, so these are the various minor losses which we consider during our flow through pipes. Okay, so today we are going to start flow through pipes in series. Okay, or you can say flow through compound pipes. Okay, which is compound pipes. And now what are these compound pipes? I will show you in diagram. See here, as you can see in diagram here. Okay, so what are compound pipes? Compound pipes are defined as the pipes of different lengths. Okay, different lengths and different diameters connected end to end. See here, one pipe of is different diameter, other pipe is of different diameter, and other pipe is different diameter. So this type of pipe network, or you can say flow through pipe, is called as flow in series, or you can say these pipes are called as flow through compound pipes. Okay, so let us derive an uh, head loss. In this case, what will be the head loss? Let us suppose that the L1, L2 and L3 with the lengths of this pipe 1 and pipe 2. We considering here three pipes, okay, which are connected to the reservoirs. Okay, D1, D2 and D3 are the diameter of the pipe 1 to 3 respectively. V1, V2 and V3 are the velocities, and F1, F2, F3 are the coefficient of friction. Okay, now what will happen now? We will use continuity equation in this case. Okay, for calculating the head loss. First of all, let H, this H will be the, what is this H? This is the difference of water level in the two tanks. Okay, first this is one tank and this is the second tank. The H is the capital H is the difference between the water level in the two tanks. Okay, now what is continuity equation? Continuity is equal to A1 V1 is equal to A2 V2 and A3 V3. Okay, now you see, अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्या करवाया था कि हमने हेड लॉसेस जब निकाले थे तो अलग अलग केसेस के लिए, माइनर लॉसेस के लिए देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, क्या निकाला था? एक्सपेंशन के लिए अलग वैल्यू आई थी हमारे पास, हेड लॉस के लिए, कंट्रैक्शन के लिए अलग वैल्यू आई थी। वैसे ही हमारे पास एंट्रेंस और एग्जिट पे अलग अलग वैल्यूज आई थी। अब देखो इस केस में हमारे पास ये जो हमारा वाला कंपाउंड वाला केस है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे हेड लॉस? तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो डिफरेंस हमारा लिक्विड सरफेस लेवल्स में होगा वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टोटल हेड लॉस इन द पाइप्स। ओके, तो जो हमारे पास डिफरेंस लिक्विड लेवल का है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टोटल हेड लॉस जो हो रहा है पाइप में। तो हेड लॉस यहाँ पे किसके इक्वल आएगा? देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजर्वायर है, ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, लार्ज एरिया से ये कंट्रैक्ट हो रहा है। तो कंट्रैक्ट की मैंने क्या इक्वेशन बताई थी हेड लॉस में? वो हमारे पास आई थी 0.5 V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, ये हमारे पास थी किसकी? जब हमारे पास कंट्रैक्ट हो रहा है। प्लस अब देखो, ये तो हमारे पास माइनर लॉस आ गया, इसके साथ हमारे पास मेजर लॉस भी होगा। तो मेजर लॉस किसके इक्वल आया था हमारे पास? यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखो हेड लॉस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला केस आ गया हमारे पास जब कंट्रैक्ट हो रही थी पाइप, ठीक है, टैंक से, टैंक के बाद कंट्रैक्ट हो रही, तो ये वाला आ गया। उसके बाद हमने मेजर लॉस, फ्रिक्शन लॉस कंसिडर कर लिया, जो इसके इक्वेशन होता है 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 × 2C। उसके बाद क्या हो रहा है, V2 पाइप, सेकंड पाइप में क्या हो रहा है,
अब देख रहे हो जब पाइप यहाँ से आ रही है उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा कंट्रैक्ट हो रही है वो फिर स्मॉल पाइप में। तो उसके लिए हम दोबारा क्या करेंगे, 0.5 V2 स्क्वायर माइनर लॉस कंसीडर करेंगे और उसके बाद उसका मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, जब हमारे पास शॉर्टर पाइप है, ठीक है, पहले तो देखो पहले तो हमारे पास आ रही थी वो लार्जर पाइप, फिर हमारे पास छोटी पाइप हो गई और उसके बाद फिर हमारे पास पाइप लार्ज हो गई, मतलब लार्जर डाया की हो गई। तो इस केस में क्या हो रहा है, अब इसमें सडन एक्सपेंशन हो रही है ना। तो यहाँ पे कंट्रैक्शन हो रही थी, अब यहाँ पे फिर से एक्सपेंशन हो रही है, तो एक्सपेंशन के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड लॉस निकाला था हमने लास्ट टाइम लॉसेस के केस में, जब एक्सपेंशन का केस हो तो हमारे पास क्या आता है, V2 माइनस V3 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जो हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से आ जाएगा वो आ जाएगा मेजर लॉस यहाँ पे। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, मेजर और माइनर लॉसेस दोनों ले रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में बोला हो कि आपको दोनों जो लॉसेस है निकालने हैं, मेजर भी निकालना है तो माइनर माइनर भी निकालना है, तो आपको टोटल फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, लास्ट में ये टर्म V3 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये V3 स्क्वायर अपॉन 2G हमारे पास कहाँ से आया, ये हमने जो हेड लॉस निकाला था किस केस में, एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, वो हमारे पास क्या आया था, V स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ पे लास्ट में जो होगा, पाइप जो हो रहा है एग्जिट हो रहा है, उसमें जो भी फ्लो हो रहा है कहाँ आ रहा है, एग्जिट होके वो टैंक में आ रहा है, तो इसलिए हमने ये वाली टर्म यूज़ कर ली। ओके, अगर ये तो हमने किया माइनर और मेजर लॉसेस दोनों कंसीडर किया। अगर हमने क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बोला हुआ है कि सिर्फ सिर्फ आपको मेजर लॉसेस कंसीडर करने हैं, तो आपकी इक्वेशन हेड लॉस की बन जाएगी ये। ठीक है, इसमें कोई भी माइनर लॉस नहीं आएगा, तो सिंपल ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम हुआ सभी में, तो F1 इजिकल टू F2 इजिकल टू टोटल क्या आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 4F1, और यहाँ से 4F कॉमन निकालेंगे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी कंपाउंड पाइप्स में। तो कंपाउंड पाइप बेसिकली एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होती है। जब हमारे पास कि कोई हमारे पास दो टैंक्स हैं, ठीक है, और उनके साथ जो पाइप्स कनेक्टेड है वो डिफरेंट डायर्स की हैं, डिफरेंट लेंथ्स की है, और ठीक है, दो टैंक्स हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन है वो डिफरेंट डायर और डिफरेंट लेंथ की पाइप के साथ हो रहा है, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे कंपाउंड पाइप्स, या फिर उनको बोलेंगे फोर थ्रू पाइप इन सीरीज। ओके, अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे दे रखा है द डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल्स इन द टू टैंक्स विच आर कनेक्टेड बाय द थ्री पाइप्स इन सीरीज। ओके, यहाँ पे हमें थ्री पाइप्स दी हुई हैं, तो उनकी लेंथ भी दी है हमें तीनों की, 300, 170 एंड 210। डायमीटर्स भी तीनों के अलग अलग गिवन है। ठीक है, और हेड जो डिफरेंस दिया हुआ है जो कैपिटल एच है हमारे पास, वो कितना है, 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने रेट ऑफ फ्लो निकालना है, डिस्चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ दिया हुआ है आपको, 0.005 एफ गिवन है। ओके, सभी के लिए अलग अलग पाइप, तीनों के लिए अलग अलग गिवन है, ये पाइप 1 के लिए, ये पाइप 2 के लिए और पाइप 3 के लिए। अब आपको निकालना क्या है, एक तो है निकालना है आपने रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनर लॉसेस कंसीडर करने हैं, और सेकंड में माइनर लॉसेस कंसीडर नहीं करने हैं। ओके, तो देखो अब इसमें क्या करना है, सिंपल आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए लॉसेस के, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पहले गिवन क्या क्या है यहाँ पे वो देख लो। गिवन में हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस वाटर लेवल हमें गिवन है 12 मीटर। ठीक है, लेंथ पाइप की लेंथ्स भी गिवन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स भी गिवन है हमको। अब फर्स्ट हम कर लेते हैं माइनर लॉसेस कंसीडर। ठीक है, तो अभी हमने पहले सबसे पहले इनके निकालने के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन चाहिए होगी। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्यों चाहिए होगी, क्योंकि हमें वहाँ से वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ वन, मतलब V1 की टर्म्स में हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो V2 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 V1 अपॉन A2। तो एरिया क्या है, π/4 d² फर्स्ट पाइप का, ठीक है, इंटू V1 और π/4 A2 का d2²। ओके, यहाँ से हमारे पास V2 और V1 के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ओके, जब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया तो सिमिलरली हम V3 और V1 के बीच में भी रिलेशन निकाल देंगे किससे, कंटिन्यूटी इक्वेशन से। ठीक है, तो इन पाइप में फ्लो थ्रू पाइप में हमारे लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है A1 V2 A2 V2 A3 V3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ और भी पता है कि डिस्चार्ज किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी तो हम डिस्चार्ज भी, हम रेट ऑफ फ्लो भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो V3 भी हमने निकाल दिया V1 की टर्म्स में। अब क्या करो, जो हमने हेड लॉस अभी निकाला पीछे कंपाउंड पाइप्स के केस में, ठीक है, जब हमने मेजर और माइनर लॉसेस दोनों कंसिडर किए थे। ठीक है, तो उस केस में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो V1 जितना जितना जहाँ जहाँ V2 होगा और यहाँ जहाँ V3 होगा, इनको V1 की टर्म्स में हम जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हेड डिफरेंस भी हमें गिवन है 12, तो ये सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी V1 की, वो आ जाएगी 1.407 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी V1 आ गई, तो अब अगर वेलोसिटी V1 आ गई तो आप V2 और V3 भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर आपने V1, ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ से V1 आ गया। अब हमने क्या निकालना था, डिस्चार्ज निकालना था, तो डिस्चार्ज कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू किसके, A1 V1 के इक्वल डिस्चार्ज, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने निकाल दी V1, और एरिया A1 का पता है हमें, क्योंकि लेंथ और वो हमें सब कुछ गिवन है, ठीक है। तो हम सिंपली वहाँ पे किसमें डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 V1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वहाँ से हमें मिल जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आ गया ना वेलोसिटी। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज निकाल लेंगे A1 V1 से, और हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। उसको आप लीटर्स पर सेकंड में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट केस आ गया जब हमने माइनर लॉसेस कंसीडर किया। अब माइनर लॉसेस नहीं कंसीडर करेंगे, अब सिर्फ मेजर लॉसेस कंसीडर करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सभी की वैल्यूज गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, वेलोसिटीज अलग अलग सभी निकाल रखी है हमने, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ V1 सभी निकाल रखी है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो V1 की वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1.445 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो तो यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो आएगा, अभी आपने देखा था जो हमने पिछले वाला केस किया था जब हमने माइनर लॉसेस कंसीडर किए थे, ओके। जब हमने माइनर लॉसेस कंसीडर किए थे तब हमारे पास वेलोसिटी क्या आई थी, हमारे पास वेलोसिटी आई थी 1.407, और यहाँ पे क्या आ रही है 1.445। तो देख रहे हो आप काफ़ी माइनर सा डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए अगर लॉन्ग पाइप्स है तो हम इसको जनरली माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास फिर से V1 निकल गया। जब हम सिर्फ मेजर लॉसेस कंसीडर करें तो सिमिलरली डिस्चार्ज इज इक्वल टू A1 V1, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डिस्चार्ज की वैल्यू। तो हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा 102.1 लीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया, जब हमने मेजर माइनर लॉसेस भी कंसीडर किए थे तब हमारे पास डिस्चार्ज आया था 99.45 लीटर पर सेकेंड में, ओके। और जब हमने मेजर लॉसेस कंसीडर किए, माइनर लॉसेस कंसीडर नहीं किए, तो हमारे पास आया 102.1 लीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंस आता है, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है इसमें डिस्चार्ज में। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब हमारे पास नेक्स्ट केस जो है वो हमारे पास है इक्विवेलेंट पाइप का। अब इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है, अब ये हमारे पास जो कंपाउंड पाइप होती है, मान लो जो हमारे पास कंपाउंड पाइप थी जो डिफरेंट लेंथ्स, यहाँ पे देख लेते हैं एक मिनट, जो हमारे पास डिफरेंट डाया की, ठीक है, डिफरेंट लेंथ्स की जो पाइप थी, अगर इसको हम सिंगल पाइप से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, हेड लॉस और जो हमारे पास डिस्चार्ज होगा वो सेम रहेगा, पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप से, तो उस केस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट पाइप, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इक्विवेलेंट पाइप क्या चीज़ है। तो डेफिनेशन देखो यहाँ पे क्या है कि इक्विवेलेंट पाइप क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर हैविंग लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज इक्वल टू द लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंपाउंड पाइप, ओके। जिस कंपाउंड पाइप में क्या होता है हमारे पास, जिसमें सेवरल पाइप्स डिफरेंट लेंथ्स और डिफरेंट डायमीटर की होती हैं, पर इक्विवेलेंट पाइप में क्या होती है कि एक यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप को हम बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट पाइप यूनिफॉर्म डायमीटर की होती है, ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में कि उसमें हम अलग अलग लेंथ्स और उसकी डाया की पाइप यूज़ करते हैं, पर इसमें एक सिंगल यूनिफॉर्म की पाइप हम यूज़ करते हैं। डिफरेंस सिर्फ और बस यही डिफरेंस है, हेड लॉस और जो डिस्चार्ज होगा वो दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो L1 L2 हम तीन पाइप्स कंसिडर कर लेते हैं कंपाउंड के केस में, तो हमारे पास ये आ जाती हैं तीन केसेस, ठीक है। हेड लॉस जो हमारे पास H है, तो डाया डाया जो होंगी इक्विवेलेंट पाइप का वो क्या होगा, वो हम कंसिडर कर लेते हैं एक, क्योंकि डाया जो है वो यूनिफॉर्म डाया है, ठीक है, मतलब सेम डाया है, तो इसलिए सिर्फ डी कंसिडर कर लेते हैं। तो एल किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस L3। तो टोटल लॉस पहले हमने निकाला था अभी जब हमने माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट किया था, तो हमारे पास क्या आया था एच, मेजर लॉसेस को कंसिडर करके हमारे पास हेड लॉस आया था ये,
ओके, ठीक है। थ्री थ्री डिफरेंट पाइप्स है और तीनों डिफरेंट पाइप्स के लिए अलग अलग हमें फ्रिक्शन जो होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज या यू कैन से मेजर लॉसेज कंसिडर करने पड़ते हैं। हमने यहाँ पे ज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद अगर डिस्चार्ज, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, क्यू इज इक्वल टू A1 V1 A2 V2 और A3 V3, थ्री पाइप्स हैं तो थ्री केसेस हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, A1 के केस में क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा π/4 D1² इंटू V1, ठीक है। सिमिलरली A2 वाले केस में क्या आ जाएगा π/4 D2² और 3 में आ जाएगा π/4 D3²। तो यहाँ से हम इन तीनों फार्मूले से हम V1 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी, यहाँ से V1 की, V2 की और V3 की, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास V1 की वैल्यूज़ आई हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, हेड लॉस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये अब इक्वेशन जो हेड लॉस वाली इक्वेशन है वहाँ सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी दिस वन, ठीक है। हेड लॉस किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये केस किसका निकाला हमने, ये निकाला कंपाउंड केस का, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड का केस हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसको, इक्विवेलेंट पाइप को कंपाउंड पाइप से। तो कंपाउंड पाइप्स में तो हमारे पास लेंथ्स डिफरेंट होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, कंपाउंड के केस में। अब सिमिलरली हेड लॉस जो होगा किसके केस में, इक्विवेलेंट पाइप के केस में, क्योंकि वहाँ पे हम सिंगल लेंथ की यूनिफॉर्म डाया की एक सिंगल पाइप यूज़ करें जिसमें हेड लॉस जो होगा और, ठीक है, हेड लॉस और डिस्चार्ज जो होगा वो सेम होगा किसके इक्वल, कंपाउंड पाइप के इक्वल। तो हमारे पास जो हेड लॉस उसमें आएगा वो क्या आएगा, 4F, वहाँ पे हम L1 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सिंपल L आ जाएगा, टोटल लेंथ V² अपॉन D इंटू 2G। तो ये हमारे पास आ जाएगा किस केस, किसका केस, इक्विवेलेंट का केस, ठीक है। तो यहाँ से भी हम वेलोसिटी निकाल लेंगे जैसे हमने उसमें निकाली कि Q इज इक्वल टू AV, तो यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी Q अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये आ जाएगी वहाँ पे इक्वेशन, ओके। अब इसके बाद क्या है, हमारे हमको पता है कि जो हेड लॉस होता है कंपाउंड पाइप में और जो इक्विवेलेंट पाइप में वो दोनों में सेम होता है, क्योंकि सिर्फ हम रिप्लेस कर रहे हैं जो डिफरेंट लेंथ्स की पाइप है उसको सिंगल पाइप से, हेड लॉस और डिस्चार्ज सेम रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, और ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, ये वाली जो इक्वेशन आई है इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो दोनों को इक्वेट करने के बाद जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी दिस वन, ठीक है। L1 अपॉन D15 प्लस L2 D1 D25 प्लस L3 D35 इज इक्वल टू L/5, ओके। तो ये हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट पाइप की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम कोई भी कंपाउंड पाइप है तो उसको हम इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा के। और ये जो इक्वेशन है, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है पेपर में, कि इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डुपिट्स इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डुपिट्स इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ओके। इस इक्वेशन में जो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, एल किसके इक्वल है, L1 प्लस L2 प्लस L3 के, क्योंकि हम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और D1 D2 और D3 हमें नोन है, तो हम इजीली इक्विवेलेंट साइज ऑफ पाइप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ D निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ड्यूपिट्स इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ड्यूपिट्स इक्वेशन फिर से लिख लेता हूँ, DU ड्यूपिट्स इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफ्यूजन ड्यूपिट्स इक्वेशन एंड डिराइव इट, ओके। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम इसका। तो न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है कि थ्री पाइप्स दी हुई हैं, ठीक है, उनकी लेंथ्स दी हुई है, हमें डाया भी दिया हुआ है, और क्या बोला हुआ है हमें, ये कनेक्टेड इन सीरीज है, ओके, सीरीज का केस है। दीज पाइप्स आर टू बी रिप्लेस्ड बाई, अब इसको हमने रिप्लेस करना है सिंगल पाइप से, मीन्स कि हमें इसे इक्विवेलेंट पाइप से हमें इसको रिप्लेस करना है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, 1700 मीटर लेंथ है। तो हमने क्या निकालना है, डाया निकालना है इसका, ठीक है। अब आपको ये वाली इक्वेशन अगर याद होगी, कौन सी, जो भी हमने की, एल L1 अपॉन D15 प्लस L2 अपॉन D25
प्लस L3/D3 5 इक्वल टू व्हाट, L/D5। अगर ये इक्वेशन आपको याद होगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पाइप की लेंथ गिवन है फर्स्ट की, तो वहाँ से डाया गिवन है, हमें लेंथ की 2 की भी गिवन है, डाया भी गिवन है, 3 की भी गिवन है, डाया भी गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो इक्विवेलेंट पाइप का डाया वो डी है। ठीक है, तो हम लगा देंगे इक्वेशन यहाँ पे जो मैंने अभी भी निकाली इक्विवेलेंट पाइप के लिए कि L1/D15 प्लस L2/D25 प्लस L3/D35। सभी की वैल्यूज़ आपको गिवन है, सिर्फ स्मॉल डी जो हमारे पास डी है उसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है हमें। तो वैल्यू सभी की पता है, वहाँ वैल्यू पुट करेगा तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 371.8 mm। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में ये पूछा होगा कि आपको कोई कंपाउंड पाइप दी है जो कनेक्टेड, या फिर सीरीज में दी जो पाइप कनेक्टेड है उनको कन्वर्ट करना है एक इक्विवेलेंट पाइप में। तो ये फार्मूला लगा के आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस आ जाता है कि फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था फ्लो थ्रू पाइप इन सीरीज और यू कैन से कंपाउंड पाइप्स। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है पैरेलल पाइप्स का। तो आप यहाँ से डायग्राम से देख सकते हो कि पैरेलल पाइप्स किस तरह से होती हैं। एक सिंगल पाइप आ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि फ्लो जो हो रहा है वो डाइवर्ज हो रहा है अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, 2 डायरेक्शन पे यहाँ पे इस तरह का अरेंजमेंट है कुछ। तो एक फ्लो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, दूसरा यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, और फाइनली ये जब आगे जाके दोबारा एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल पाइप्स। ओके, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। ओके, so in which main pipe which divides into 2 or more branches and again join together downstream to form a single pipe। ओके, तो इन ब्रांच पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, अब हमारे पास जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, टोटल डिस्चार्ज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा Q1 प्लस Q2 के। ठीक है, Q1 ये वाला जो इस पाइप से जा रहा है और जो इस पाइप से जा रहा है, टोटल डिस्चार्ज तो किसके इक्वल होगा, दोनों का मिला के। ठीक है, पर जो इसमें जो हेड लॉस होगा, ठीक है, जो इस पाइप में होगा उतना ही हेड लॉस इस पाइप में होगा, हेड लॉस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ हेड इन ये वाली इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2, ब्रांच पाइप 2। तो लॉस ऑफ हेड फॉर ब्रांच पाइप 1 के लिए मान लेते हैं, अगर हम सिर्फ मेजर लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ मेजर लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ब्रांच के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास हेड लॉस, इस ब्रांच के लिए आ जाएगा हमारे पास 4F1L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 × 2G। ओके, और क्योंकि हेड लॉस दोनों में सेम रहेगा तो इक्वेट कर देते हैं इसको, जो सेकंड वाली है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, 4 of F2L2 V2 स्क्वायर अपॉन D2 × 2G। ठीक है, तो अगर आपको लॉसेस यहाँ पे याद हैं तो आपको ईजिली हम आपको निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे हम कंसिडर कर लें कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों में सेम है, मतलब F1 इज इक्वल टू अगर F2 है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी L1 V1 स्क्वायर अपॉन D1 × 2G इज इक्वल टू L2 V2 स्क्वायर अपॉन D2 × 2G। तो ये हमारे पास केस किसका आ गया, जब हमारे पास फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स। ठीक है, जब हमारे पास पैरेलल पाइप्स हैं। ठीक है, तो आज हमने 2 केसेस पढ़ लिए, एक फर्स्ट पढ़ लिया हमने कंपाउंड पाइप्स का और सेकंड पढ़ लिया हमने पैरेलल पाइप्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रू ब्रांच्ड पाइप्स। ओके, फ्लो थ्रू ब्रांच्ड पाइप्स। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, हैव अ गुड डे।